السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 یعنی انٹر والوں کے لیے بہت ہی اہم سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، جسے ہم اور آپ برق کلیسا ظریفانہ نظم، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہیں اکبر الہ آبادی، اور دوسرا ہے یعنی 15واں ہے متشاعر ظریفانہ نظم، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہیں کیا ہے ظفر کمالی، 16واں ہے کھیتی، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہیں عمیق حنفی، اور 17واں ہے ہم نہیں جانتے، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہیں یوجنو مونتالے۔ اسٹوڈنٹ، ان تمام چیپٹروں کا یعنی ان چاروں سبق کا میں مکمل طور پر کمپلیٹ طور پر آپ لوگوں کو سبجیکٹو کوشچن پڑھانے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ پوری ویڈیو کو شوق اور ذوق اور لگن کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹ، یہ ایسا گھڑی ہے، ایسا وقت ہے کہ اسٹوڈنٹ اگر یہ سبق آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر اس طریقے کی ویڈیو دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسٹوڈنٹ، آپ وقت کی قدر کریں۔ خدا را آپ کے زندگی میں ایک ہی مرتبہ انٹر کا ایگزام آئے گا، بار بار نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے اس ایگزام کے اندر اچھے نمبر لا کر اپنے معاشرے سوسائٹی کا نام روشن نہیں کیا تو اسٹوڈنٹ زندگی میں بہت افسوس ہوگا۔ تو چلے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج کی اس کلاس کا آغاز کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ اسٹوڈنٹ آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اور اپنے دوستوں کو اس چینل سے جڑنے کی تلقین کریں گے۔ یہ تو ابھی سبجیکٹو چل رہا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد یعنی کچھ چیپٹر بچے ہوئے ہیں، ان کے بعد انشاءاللہ دھواں دھار پھر آپ کا آبجیکٹو چلے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں مختصر ترین سوالات ما جوابات۔ سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے اسٹوڈنٹ، کیا کھیتی ایک پابند نظم ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا جی ہاں، جی نہیں، کھیتی ایک پابند نظم نہیں ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 2 میں، کھیتی کی حیت کیا ہے، یعنی کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ، کھیتی کی حیت آزاد نظم کی ہے۔ سوال نمبر 3 میں ہے کہ اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ اس نظم کے شاعر ہیں عمیق حنفی۔ یہ آپ کا آبجیکٹو میں بھی پوچھا جائے گا کہ اس نظم کا یعنی کھیتی کا کیا ہے رائٹر کون ہے؟ تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ سیدھے سے بتا دیں گے۔ اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 4 میں ہے، اور پڑھنے کے مواقع بھی ہمیں دیتا ہے وقت، کیا یہ مصرع نظم کھیتی سے ماخوذ ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا جی ہاں، یہ مصرع جو نظم کھیتی سے ماخوذ ہے، اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 5 میں ہے، سبز کو زرعی بنانے کی اجازت ہمیں کون مرحمت فرماتا ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ وقت مرحمت فرماتا ہے۔ ہم اس طریقے سے وہاں نہیں لکھیں گے ایگزام میں، بلکہ لکھیں گے سبز کو زرعی بنانے کی اجازت ہمیں وقت مرحمت فرماتا ہے نا، اس طریقے سے ہم جواب لکھیں گے۔ صرف یہاں وقت مرحمت کرتا ہے، یہ بالکل جو 100 میں 100 جس کو ہم بولتے ہیں 100 میں 100 اچھا لکھا ہے، تو یہ نہیں ہے نا، جب اس چیز کو بھی لکھنا پڑے، یعنی سبز کو زرعی بنانے کی اجازت ہمیں وقت مرحمت کرتا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 6 میں اسٹوڈنٹ، کہ سورج کی کرن کی ہمدمی میں کیا وقت ہمیں جھومنے دیتا ہے؟ تو سیدھا ہوگا کہ جی ہاں، جھومنے دیتا ہے۔ سوال نمبر 7 میں، کیا تمام انسان وقت کی کھیتی ہے؟ تو جواب ہوگا جی ہاں، تمام انسان وقت کی کھیتی ہے۔ جس طریقے سے ایک وقت ہوتا ہے جو کھیت کو بویا جاتا ہے، یعنی کھیتی کیا فصل بوئی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان ہے، انسان بھی ایک وقت ہوتا ہے جب وہ اس دنیا میں نمودار ہوتا ہے، اور ایک دن ہوتا ہے اس دنیا سے انہیں کوچ کرنا ہوتا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 8 میں، کیا تمام انسان وقت کے لقمے ہیں؟ کہا جی ہاں، تمام انسان کیا ہے وقت کے لقمے ہیں۔ سوال نمبر 9 میں اسٹوڈنٹ، کہ کیا وقت کھیتی کا مرکزی کردار ہے؟ سیدھا ہوگا جی ہاں، نظم کھیتی کا مرکزی کردار وقت ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں مختصر ترین سوالات ما جوابات۔ کون ہے سبق نمبر 16 15 14 ہم نے پڑھا کھیتی کے بارے میں، اور 15واں سبق ہے برق کلیسا، ہے نا،
कलिसा गिरजा घर जिसको हम बोलते हैं क्रिश्चियन का, है ना, चर्च। भाई सवाल नंबर 1 में है कि अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे। तो सीधा सा जवाब होगा कि अकबर इलाहाबादी ज़रीफ शायर थे। कौन थे? ज़रीफ शायर थे। आगे है सवाल नंबर 2 में कि अकबर किस पर्चे के नवरत्नों में शुमार होते हैं। तो सीधा सा जवाब होगा कि अकबर अवध पंज के नवरत्नों में शुमार होते हैं। अवध किसको बोला जाता है? लखनऊ के इलाके को अवध बोलते हैं। सवाल नंबर 3 में स्टूडेंट नज़्म बर्क़ कलीसा के शायर का नाम बताइए। तो सीधा सा जवाब होगा नज़्म बर्क़ कलीसा के शायर का नाम अकबर इलाहाबादी है। आगे है सवाल नंबर 14 में कि शायर को मिस कहाँ मिली थी। तो सीधा सा जवाब होगा शायर को मिस क्या कलीसा में मिली थी। सवाल नंबर 5 में है कि शायर ने इस नज़्म में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है। तो सीधा सा जवाब होगा शायर ने इस नज़्म में मिस को गुलशन फितरत की बहार कहा है। यानी मिस इतनी खूबसूरत थी जिसको देखकर क्या शायर क्या है अपने आप को भूल गए थे और उन्होंने तमाम हदें पार कर दी थी उसकी तारीफ़ में। आगे है कि दौलत व इज़्ज़त व ईमा शायर किसके कदमों में निसार करना चाहता है, यानी निशावर करना चाहता है। तो सीधा होगा जवाब की कलीसा के मिस पर शायर दौलत व इज़्ज़त ईमान निसार करना चाहता है, निशावर करना चाहता है, इन्हें कदमों में डालना चाहता है। कर हमले सरहद पर क्या करते हैं गाजी बनकर, ये बात शायर ने किसके बारे में कही है। तो सीधा सा जवाब होगा कि मुसलमानों के बारे में कही है कि मुसलमान क्या है सरहद पर क्या है गाजी बनकर हमला करते हैं, है ना। लेकिन जो हकीकत मुसलमानों की होनी चाहिए वो उनके अंदर अब नहीं रहा पहले जैसे था, अब तो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। सवाल नंबर 8 में स्टूडेंट अब ज़माने पे नहीं है असर आदम व नूह, ये बात किससे कही। तो क्या है ये बात शायर ने मुझसे कही। यानी जिस तरीके से आदम और नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या है ज़माने पर क्या थी असर थी, यानी सच्चाई था, झूठ नहीं था, अमानत में ख़यानत नहीं थी, क्या कत्ल गारतगिरी नहीं था, है ना, शोर शराबा क्या है जुआ और जिना डाका जनी ये सब वगैरह नहीं था। ज़माने में क्या है सच्चों का ज़माना था और उस ज़माने में अब ये ज़माना बहुत ही नीचे आ गया है, यानी क़ुर्ब क़यामत के वक्त चल रहा है। आगे हैं स्टूडेंट सवाल नंबर मुख्तसर सवालात माँ जवाबात। सवाल नंबर 1 में है कि अकबर इलाहाबादी ने अपने नज़्म का उन्वान बर्क़ कलीसा क्यों रखा। तो सीधा सा जवाब होगा कि अकबर इलाहाबादी ने अपने नज़्म का उन्वान यानी टॉपिक बर्क़ कलीसा इसलिए रखा कि उन्होंने अपनी शायरी में उमूमन तहज़ीब व तमद्दुन को अपने तनक़ीद का हदफ बनाया है। यानी जो हमारे तहज़ीब है यानी कल्चर है उसको क्या है उन्होंने तनक़ीद का हदफ बनाया, निशाना बनाया। कर इस नज़्म में भी उन्होंने अंग्रेज़ी तहज़ीब को ही हदफ मलामत बनाया है। यानी अंग्रेज़ी जो तहज़ीब है वहाँ का कल्चर है, यानी जैसा आज चल रहा है हमारे मुआशरे के अंदर कि खड़े खड़े खाना खाना और बच्चियाँ हैं औरतें हैं तो छोटा छोटा कपड़ा पहनना, है ना, इस वगैरह ज़ालिक ये सब है। कर बर्क़ कलीसा के माना होता है कलीसा की बिजली, इसलिए शायर अंग्रेज़ी मिसको बर्क़ से ताबीर करते हुए बर्क़ का माना होता है बिजली। जिस तरीके से बिजली चमकता है या चमकती है, बिजली जिस तरीके से चमकती है कहीं उससे ज़्यादा क्या है ये मिस खूबसूरत थी, इसलिए उन्होंने मिस को बर्क़ से ताबीर करते हुए नज़्म का उन्वान बर्क़ कलीसा रखा है। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 2 में कि मिस ने मुसलमानों के बारे में इस नज़्म में किन ख़यालात का इजहार किया है। तो सीधा सा जवाब होगा कि मिस ने मुसलमानों के बारे में इस नज़्म में मुसलमानों की मज़हब परस्ती और इस्लामी तालीमात से नफ़रत और तअस्सुब का इजहार किया है। ख़ास तौर से इस्लामी अहकाम जिहाद और नमाज से उसने नफ़रत का इजहार किया है, इसलिए कि ये सब ऐसे इल्हामी अहकामात हैं जिनसे ईसाईयत पर कारी का ज़र्ब पड़ती है, इसलिए खालिस इस्लाम से उसको नफ़रत है। यानी जिहाद करना, नमाज पढ़ना, है ना, ज़कात देना, ये सब क्या है उनको क्या लगता है उनकी ईसाईयत पर क्या है ज़र्ब कारी लगता है, इसलिए मिस ने उसको क्या कहा है यानी मुसलमानों से बल्कि इस्लाम से नफ़रत का इजहार किया है। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 3 में कि इस नज़्म में शायर ने मिस के रूबरू मुसलमानों के बारे में क्या कहा है। तो सीधा सा जवाब होगा स्टूडेंट कि इस नज़्म में शायर ने मिस के रूबरू मुसलमानों के बारे में उनकी बदहाली मज़हब से बेराह रवी को तंज़िया अंदाज में पेश किया है। शायर ने मुसलमानों को
بزرگان دین، اولیاء اللہ، صحابہ کرام اور پیغمبروں کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے موجودہ دور کے مسلمانوں کو غیرت دلانے کی کوشش کی ہے۔ یہاں کشش لکھا ہوا ہے، حالانکہ کوشش ہونی چاہیے، کوشش ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ہمارے اولیاء اللہ بزرگان دین گزر چکے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 150 سال پہلے، اس وقت کا ماحول اور حالات جو تھے، آج وہ مسلمانوں میں کیا دیکھا نہیں جاتا ہے۔ آج مسلمان صرف کرتا ٹوپی پاجامہ پہن لینے سے آگے ہے۔ اسٹوڈنٹ سوال نمبر 4 میں کہ شاعر کو کس بات پر مس ہنس کر نہیں بولتی ہے، اس موقع پر شاعر سے کیا کہتی ہے؟ تو سیدھا سے جواب ہوگا کہ شاعر نے جب برق کلیسا میں جا کر انگریزی میم سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، سوری یہاں میم ہے، اور عزت و دولت و مذہب کو اس کے حسن پر نثار کرنے کی بات کہی، تو مس ہنسنے کی بجائے تیور چڑھا کر مسلمانوں سے نفرت کا کیا اظہار کیا کہ اس گفتگو کے راوی تو خود شاعر ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کے مذہب کے نمائندہ کے طور پر مجھ سے مخاطب ہوتے تھے، ہے نا۔ یعنی جب وہ کیا ہے، شاعر نے مجھ سے کیا ہے اپنے مذہب، عزت و دولت یعنی شہرت سب کیا اس مجھ پر نچھاور کر دی تھی، یعنی ان تمام چیزوں کو قربان کر دی تھی تاکہ اس سے ہمیں کیا ہے محبت ہو جائے۔ خیر آگے سوال نمبر 5 میں کہ نظم برق کلیسا کے ذریعہ شاعر ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ سیدھا سا جواب ہوگا کہ نظم برق کلیسا کے ذریعہ شاعر ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسلامی تہذیب و ثقافت اتنی پسماندہ ہو چکی ہے اور مسلم نوجوان مذہب سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ آج کے نوجوان محبوب کی خوشنودی اور عارضی محبت کے لیے اپنے دین و ایمان کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو ہے عشق حقیقی اور ایک ہے عشق مجازی، یعنی عشق حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول سے کی جاتی ہے، اور اس کے مجازی تو یہ کیا ہے مجازن کیا جاتا ہے، اس میں کیا ہے دھوکہ دھڑی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی محبت میں دھوکہ دھڑی نہیں ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی تہذیب و تمدن کی دیوالیہ پن پر ایک طرح کا طنز ہے نا۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ سبق نمبر 16 متشاعر جو ظریفانہ نظم ہے، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہیں ظفر کمالی۔ اس میں سوال نمبر 1 میں ہے کہ متشاعر کے لفظی معنی کیا ہیں؟ تو سیدھا سے جواب ہوگا بناوٹی شاعر۔ سوال نمبر 2 میں ہے نرالا اثر متشاعر کی کس چیز میں ہے؟ تو سیدھا ہوگا متشاعر کی بٹر میں نرالا اثر ہے۔ آگے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 3 میں کہ متشاعر بھلے ہی شعر نہیں کہتا ہو لیکن وہ کس بات پر مطمئن ہے؟ تو سیدھا سے جواب ہوگا کہ شہرت و نام و نمود پر کیا ہے وہ مطمئن ہے، اگرچہ کیا ہے بھلے انہیں شعر نہیں کہنا آتا ہے۔ اپنا شہرہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، آج کے دور میں جو اچھا جبہ کبا یعنی اس طریقے سے اپنے آپ کو ایسا پیش کرتا ہے جیسے بہت پڑھے لکھے آدمی ہو، بہت کیا ہے جانکار آدمی ہو، حالانکہ کیا ہے بجتا ہوا برتن خالی ہوتا ہے، خالی برتن میں آواز بہت ہوتی ہے، بس وہی ہے۔ آگے سوال نمبر 4 میں کہ کسی کام سے متشاعر کبھی نہیں تھکتا، کہہ رہا ہے کہ جی حضوری سے نہیں تھکتا، یعنی جی حضوری کرنے میں اپنے نام و نمود کے لیے، شہرت کمانے کے لیے کیا شاعر نہیں تھکتا ہے۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 5 میں کہ دھنباد اور جھریاں کس بنیاد پر متشاعر جاتا رہتا ہے؟ تو سیدھا ہوگا چاپلوسی کی بنیاد پر متشاعر دھنباد اور جھریاں کیا جاتا رہتا ہے۔ کہہ رہے ہیں متشاعر کا یار کون ہے؟ تو سیدھا جواب ہوگا تضمین لکھنے والا متشاعر کا یار ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ آپ کا بہت ہی اہم چیپٹر ہے، بہت ہی اہم سبق ہے۔ اسٹوڈنٹ یہی وہ کوشچن ہے جس کو پڑھ کر اس سے پہلے اسٹوڈنٹس نے 98 نمبر لایا۔ خدا را آپ بھی محنت کیجئے، یہ ایسا ویسا کوشچن نہیں ہے، یہ کوشچن 2017 سے لے کر 2024 تک جتنے بھی ایگزام ہوئے ہیں ان ایگزام میں یہ کوشچن پوچھا جا چکا ہے۔ اس وجہ سے میں آپ حضرات کے لیے ایسا کوشچن کا انتخاب کیا تاکہ ہر ایگزام میں جو پوچھا ہے انشاءاللہ وہی بھی آئندہ ایگزام میں بھی پوچھے گا۔ چلیے آگے ہے سوال نمبر 7 میں کہ متشاعر کی نظر میں غمخوار کون ہے؟ سیدھا جواب ہوگا جو پیروڈیاں دے دے وہی غمخوار ہے۔ سوال نمبر 8 میں ہے کہ متشاعر کا سردار کون ہے؟ تو سیدھا سے جواب ہوگا کہ دیوان دے دے وہ متشاعر کا کیا ہے سردار ہے۔
आगे सवाल नंबर 9 में मुतशायर का बस चले तो वह कौन सा काम करना चाहता है? तो सीधा जवाब होगा मुतशायर का बस चले तो वह अकबर के दीवान पर भी कब्जा जमा ले। जिस तरीके से चापलूसी करता है, चापलूसी करके वो कुछ भी कर सकता है। आगे सवाल नंबर 10 में कि मुतशायर किन लोगों से दोगुना कमाता है? तो जवाब होगा मुतशायर अफसर लोगों से दोगुना कमाता है, इस वजह से कि वो किसी के चापलूसी करता है, किसी के शान में क्या है, यूं ही क्या है गुनगुना दिया, यानी झूठो तारीफ कर दिया तो लोग क्या उन्हें बहुत ही इनामात से नवाजते हैं। इस वजह से क्या है, अफसर से वो दोगुना कमाते हैं। अब है मुख्तसर सवालात मा जवाबात। सवाल नंबर 1 में है कि मुतशायर उर्दू का जनाजा आखिर किस तरह निकालेगा? तो सीधा होगा जवाब कि ज़ेर नज़र नज़म मुतशायर उर्दू का जनाजा इस तरह निकालेगा कि वह खुद तो शायर नहीं, दूसरों का कलाम सुरका करके यानी चुरा करके या खरीद कर शायर बनता फिरता है, हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। ऐसे लोग तो अदब के लिए बाई से क्या है, बाई से नंग होते हैं, है ना। वह अपने चेहरे पर ज़राफ़त का गाज़ा मल लेते हैं, यानी और अपनी जहालत से ज़राफ़त के पर्दों में उर्दू का जनाजा निकालते हैं। आगे सवाल नंबर 2 में कि ममूले ने शाहीन का चोला बदल लिया, इससे शायर क्या कहना चाहते हैं? तो सीधा होगा ममूले ने शाहीन, ममूला क्या मामूली सी परिंदा होता है, करे चोला बदल लिया, इससे शायर ये कहना चाहता है कि मुतशायर ने शायर का जो चोला बदल लिया है, मतलब ये है कि ममूली को मुतशायर से ताबीर किया है और शाहीन को असल शायर से ताबीर किया गया है। यानी किसी अदबी महफिल में मुतशायर ने किसी से कलाम खरीद कर अरबाब ज़ौक़ से वाहवाही लूट लिया और क्या है, लोगों में गलतफहमी फैलाकर असल शायर बन गया। आगे है सवाल नंबर 3 में कि इस नज़्म में जिन शहरों और मुल्कों के नाम आते हैं उन्हें तरतीबवार लिखिए, साथ ही मुल्कों की राजधानियाँ भी लिखिए। कर शहरों के नाम धनबाद, झरिया, पटना, दिल्ली, पूना, पेरिस और लंदन है। मुल्कों के नाम है कनाडा, दोहा, कतर, शिकागो। आगे है स्टूडेंट, मुतशायर खुद को खोटा सिक्का क्यों कह रहा है? तो सीधा जवाब होगा कि मुतशायर खुद को खोटा सिक्का इसलिए कह रहा है कि वो असल शायर तो है नहीं, दूसरे शुअरा से कलाम खरीद कर या किसी कदीम शायर के दीवान से चंद गज़ल सुरखा करके यानी चोरी करके अदबी महफिलों में पढ़ लेता है और शायर की हैसियत से अपना तारुफ करा लेता है। लेकिन अगर उसे बरजस्ता अशार कहने के लिए कह दिया जाए तो उसकी सारी कलाई खुल जाएगी, इसीलिए वो अपने आप को खोटा सिक्का कहता है। आगे है सवाल नंबर 5 में, क्या ज़बह गैरत को बनकर कसाई और कुली है? मुझे दोस्त बेज़मीरी का मतलब बयान कीजिए। सीधा होगा कि ज़बह गैरत को बनकर कसाई का मतलब ये है कि अगर गैरत रहेगी तो मुतशायर शायर नहीं बन पाएगा, यानी गैरत उसे शायर बनने नहीं देगा। इसीलिए मुतशायर ने गैरत को इस तरह ज़बह कर डाला कि फिर वह दोबारा उसका एहसास ही नहीं मिली है। मुझे दौलत बेज़मीरी का मतलब है कि मतलब यह है कि अगर गैरत और ज़मीर इंसान के दिल में ना हो तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। जैसा कि अरबी का मक़ूला है फ़ारसी का मक़ूला है बेहयाबास हरचे खाई फ़फ़ाल इज़ा मा शीता। अरबी का मक़ूला है कि अगर इंसान के अंदर हया ज़मीर ना रहे तो वो जो चाहे वो कर सकता है, नहीं गलत भी करेगा तो भी सही लगेगा, खराब अच्छा भी करेगा तो भी सही लगेगा। इसलिए बेज़मीरी भी एक किस्म की दौलत है। इसी दौलत की बुनियाद पर ही लोग क्या मुतशायर बन जाते हैं। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 6 में अदब के लिए खुद को बाई से नंग मुतशायर क्यों कह रहा है, बताइए। तो सीधा जवाब होगा कि मुतशायर अदब के लिए खुद को बाई से नंग इसलिए कह रहा है कि दूसरों का कलाम खरीद कर या सुरखा करके शायर तो बन गया, लेकिन कभी कभी उसका ज़मीर ज़िंदा हो जाता है तो उसे अपनी कमाएगी का एहसास होने लगता है। इन्हीं लम्हात में मुतशायर अपने आप को अदब के लिए बाई से नंग समझता है। तो रहा स्टूडेंट ये सबक नंबर 16 कंप्लीट। अब आगे हम चलते हैं सबक नंबर 17 में हम नहीं जानते, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ है यूजन मुंताले। मुख्तसर तरीन सवालात हैं। सवाल नंबर 1 में है कि यूजन मुंताले किस सदी के शायर हैं? तो सीधा सा जवाब होगा यूजन मुंताले 20वीं सदी के शायर हैं। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 2 में यूजन मुंताले का पहला शेरी मजमुआ कब शाइक हुआ? स्टूडेंट ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, इसलिए आप ज़हन नशी कर लें कि उनका पहला शेरी मजमुआ
सन 1915 ईस्वी में शाये हुआ। सवाल नंबर 3 में शामिल निसाब नज़्म हम नहीं जानते का तर्जुमा किस ज़बान से किया गया, तो सीधा जवाब होगा इतालवी ज़बान से किया गया। आगे है सवाल नंबर 4 में नज़्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जुमा किसने किया है, तो सीधा जवाब होगा ज़ाहिदा ज़ैदी ने किया है। सवाल नंबर 5 में है जिनसे तराशा गया किस्सा ज़िंदगी का बदन का ये मिसरा नज़्म हम नहीं जानते से माखूज़ है। जिनसे तराशा गया किस्सा ज़िंदगी का बदन ये मिसरा नज़्म हम नहीं जानते से माखूज़ है। सवाल नंबर 6 में है स्टूडेंट कि यह नज़्म किस हैत में लिखी गई, करे ये नज़्म एक आज़ाद नज़्म की हैत में लिखी गई है। सवाल नंबर 7 में है कि इस नज़्म में किसके आहंग और खामोश सरगर्मी को शायर अपने साथ ले जाना चाहता है, तो सीधा जवाब होगा इस नज़्म में समंदर के आहंग और खामोश सरगर्मी को शायर अपने साथ ले जाना चाहता है। सवाल नंबर 8 में है कि मोनताले इस नज़्म में किसकी गूंज नेहा खानाए दिल में बाकी रहने की बात करता है, तो सीधा जवाब होगा कि मोनताले इस नज़्म में समंदर की गूंज को नेहा खानाए दिल में यानी दिल के गोशा में यानी दिल की एकदम अहम जगह में क्या बाकी रहने की बात करता है। तो स्टूडेंट की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं मुख्तसर सवालात मा जवाबात में। सवाल नंबर 1 में है कि नज़्म हम नहीं जानते में शायर ने ज़िंदगी को नाकाबिल तरसील हिकायत क्यों कहा है, तो सीधा जवाब होगा कि नज़्म हम नहीं जानते में शायर ने ज़िंदगी को नाकाबिल तरसील हिकायत इसलिए कहा है कि शायर इस नज़्म के पहले हिस्सा में तन्हाई महसूस करता है और अपने को गैर यकीनी मुस्तकबिल मायूस नज़र आता है। मुस्तकबिल से क्या है, गैर यकीनी मुस्तकबिल से मायूस नज़र आता है और फ़िक्र के दरिया में गर्क होकर सोच रहा है कि न जाने मेरा मुस्तकबिल मेरा फ्यूचर कैसा होगा। इस फिक्र के आलम में मुस्तकबिल के अंदेशे से घबरा कर वो कह उठता है कि हम नहीं जानते कि मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा, यानी मेरा कल क्या होने वाला है ना। इसलिए कि ज़िंदगी एक हिकायत है जिसके तरसील मुमकिन ही नहीं है। यानी आज मैं जवान हूँ, कल मेरे साथ में जब मैं बुढ़ापे को पहुँच जाऊँगा तो मेरा क्या सहारा होगा, क्या यारो मददगार होगा, वही चीज़ के बारे में मुस्तकबिल के बारे में। आगे है सवाल नंबर 2 में कि इस नज़्म के पहले हिस्से में शायर ने क्या बातें कही हैं, जवाब होगा हम नहीं जानते। नज़्म के पहले हिस्से में शायर ने अपनी तन्हाई का शिकवा करते हुए अपने गैर यकीनी मुस्तकबिल का इजहार किया है। शायर एक तन्हा इंसान की हैसियत से अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता हुआ नज़र आता है। वह अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच कर मायूस हो जाता है क्योंकि उसे आने वाले कल के बारे में अंदेशा है और वह कह उठता है कि हम नहीं जानते। इस एक छोटे से जुमला के ज़रिया शायर ने अपनी ज़िंदगी की पेचीदगी और उसके मसाइल को बिलवास्ता तौर पर पेश किया है। आगे स्टूडेंट आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन, आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन इससे पूछा गया है सवाल नंबर 3 में कि ए बहर ए जद अमजद से मुखातब होकर शायर ने किन ख्यालात का इजहार किया है, तो सीधा सा जवाब होगा स्टूडेंट कि हम नहीं जानते में शायर नज़्म हम नहीं जानते में शायर जहाँ पहले हिस्से में मायूसी की कैफियत से दो चार था, नज़्म के दूसरे हिस्से में शायर की कैफियत बदल जाती है। इस हिस्सा में शायर के अंदर उम्मीद की किरण नज़र आती है, उसे ज़िंदगी से कुछ उम्मीदें वाबस्ता होने लगती है, उसे कुछ होने का एहसास होता है। वो तन्हाई में जो बातें सोच रहा है अब वह इससे अलग सोचता है और कहता है कि यहाँ इतना मालूम है कि इससे यानी इसके अंदर उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। यानी स्टूडेंट यहीं तक रहा मेरा और आपका मुलाकात सफ़र। स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टूडेंट इससे पहले स्टूडेंट मैं आपसे अदना से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदारा इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है कि आज अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज के इस वीडियो का लिंक ज़रूर लगाएंगे। स्टूडेंट आपके स्टेटस देखने वाले अगर देखकर इस क्लास को पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सवाब होगा, क्योंकि हम एक एक नेकी के क्या तलबगार हैं। कल क़यामत के दिन एक एक नेकी के लिए तरस जाएंगे। अगर यही हमारे लिए क्या बाइस जन्नत बन जाएगा तो हमारे लिए कामयाबी का राह गामज़न होगा। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलिए।